کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. مولانا سے پہلے ہماری درخواست ہوگی کہ وہ آغاز کریں اپنی تاریخ پیدائش سے اور اس دور سے جب ان کی نشو و نما ہو رہی تھی انہوں نے اپنا شعور سنبھالا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد اشرف خلق اللہ اجمعین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرات، ہماری زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے بہت زیادہ اڑیلا جائے اور اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات قائم کیے جائے. ایک عام انسان کی زندگی ہے جیسے ہوتا ہے انسان. ہمارا نام نظر الحفیظ اور والد صاحب کا نام عبد الحفیظ. شمالی بہار میں مشہور قصبہ ہے ململ، جو تقریباً پٹنہ سے 350 کلومیٹر کے برابر ہے. مسلمانوں کی بستی صدیقی شیوخ کی بستی ہے، اور جب سے ہماری آنکھ کھلی وہاں ہم نے دین کا تذکرہ دیکھا اور علماء کو دیکھا، دین کی خدمت کرنے والوں کو دیکھا. ہمارا گھرانہ وہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا. ہمارے دادا حافظ محمد اسحاق حافظ تھے، اور مولانا سید محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا بیعت کا. اور لفظ حافظ استعمال کیا تو یہ بھی سن لیجیے کہ ململ شروع سے حفظ کے لیے بہت مشہور رہا ہے، اور وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کی لڑکیاں بھی حافظ ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے مبالغہ کیا کہ مرغیاں بھی حافظ ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ صبح کو ہل لے کے جاتے تھے اور کھیت جوتتے تھے، اور کھیت جوتنے کے درمیان ہی وہ 8 پارہ 10 پارہ جو ہے پڑھ لیتے تھے. اور اسی طرح جب واپس آتے تھے گھر تو نماز پڑھی اور تھوڑی دیر پڑھ کر کے پھر لگ گئے اسی میں. تو بہت عام چرچا تھا. ہمارے یہاں مدرسہ تھا، مدرسہ چشمہ فیض کے نام سے. وہ ایک مچھلی شہر کے مولانا عبد الباری صاحب تھے، انہوں نے قائم کیا تھا. اس نے حفظ کا بڑا رواج ہوا، اور تمام اس کے پڑھنے والے حفظ کرنے والے بنگال کے علاقے میں، بہار کے علاقوں میں جاتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، حفظ چلانے کے لیے. اسی طرح سے ہمارے والد صاحب نے، جن کا نام عبد الحفیظ تھا، وہ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے پھر بہار کے مدرسہ عزیزیہ میں گئے، اور وہاں اس زمانے میں تعلیم حاصل کی. جب ہم نے کبھی پوچھا تو بہت مشقت کی زندگی کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور کہا کہ وہیں ہم نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر مزید تعلیم کے لیے جونپور آ گئے. جونپور میں مولانا ابوالعرفان خان صاحب جو یہاں کے استاد تھے، ان کے والد مولانا ندیم محمد صاحب تھے، تو وہاں ان سے تعلیم حاصل کی، والد صاحب نے بھی اور چچا نے بھی. اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ الہ آباد آئے. مدرسہ سبحانیہ اس زمانے میں قرض کا بہت بڑا مرکز تھا، یہاں وہ رہے اور قرض کی تعلیم حاصل کی. اسی زمانے میں غالباً 1934 میں مدرسہ کافیۃ العلوم مولانا عبد الکافی کے نام سے قائم ہوا پرتاپ گڑھ سٹی میں. تو وہاں چلے آئے اور وہیں گیا کے مدرس بن گئے، اور یہاں پوری زندگی انہوں نے تقریباً گزار دی. معمولی تنخواہ پر 15 روپے سے آغاز ہوا تھا، اور جب 1985-86 میں انہوں نے اس کو چھوڑا تو اس وقت 150 روپے تنخواہ تھی. اور وہیں ان کا رابطہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے ہوا، جو جن کو بقیت الشرف کہا جاتا ہے، اور بڑے ربانی علماء میں سے تھے. اس تذکرے کو یہیں چھوڑتے ہیں اور پھر واپس ململ چلتے ہیں. ہماری والدہ بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھیں، اور ململ میں
जमात इस्लामी का एक हल्का जो बाद में वजूद में आया, उनकी ख़वातीन ने एक अंजुमन कायम किया था। तो उस अंजुमन में वो जाती थी हर जुमेरात को, और कभी मुशायरा भी होता था ख़वातीन का, और वहाँ मज़ामीन पढ़े जाते थे, लाइब्रेरी थी वहाँ से किताबें इशू होती थी। इस तरह वह के ख़वातीन में भी बड़ा चर्चा था शेर व शायरी का, और बाद मुशायरे भी हुए जिसमें बहुत से शुआरा भी आए। इस तरह से हमने जो आँख खोली तो वह कि हमारा घराना है दीनदारी और तालीम के बारे में मशहूर था। हमारे नाना सिराजुद्दीन साहब, जिनको मुल्ला सिराजुद्दीन कहा जाता था, वो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी से उन्होंने कानपुर में तालीम हासिल की थी और उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद वो बिहार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ख़ासतौर से जहानाबाद गया के हिस्सों में वो पढ़ाने लगे और मौलाना ही से वाबस्ता रहे, और उन्हीं से वह उनके बैत का ताल्लुक़ था। इब्तदाई तालीम हमारी वहीं हुई। उसके बाद फिर वालिद साहब के साथ हम प्रतापगढ़ आ गए। बहुत कम उम्री में 7 साल या 8 साल की उम्र होगी। वालदा ने भी एक हिस्सा प्रतापगढ़ में गुजारा था। इस तरह से वह मदरसे में तालीम हासिल करते रहे, यहाँ तक कि हिफ्ज़ कुरान किया हमने। सुल्तानपुर जो यूपी का एक शहर है, वहाँ के उस्ताद से नाबीना हाफिज़ मुश्ताक नाम था, बड़ा अच्छा याद था, और उन्हीं से गोया कि हमने हिफ्ज़ किया और पूरा कुरान मजीद वहीं मुकम्मल किया। उसके बाद फिर वहीं कुछ फ़ारसी पढ़ी वालिद साहब से, उर्दू पढ़ी उन्हीं से, और उस ज़माने में कौमी आवाज़ निकलता था तो उसकी सुर्खियाँ वो पढ़वाते थे हमसे। इस तरह गोया कि अखबार से हमारी उर्दू की इब्तदा हुई, और यही गोया कि इसी से गोया कि सहाफ़त से हमारी शनासाई हुई। हिफ्ज़ मुकम्मल करके ग़ालिबन ये 1953 का वाक़या है। हमारी पैदाइश भी 1939 की है। तो 53 में हम फिर चले आए 2 साल के लिए घर, इसलिए कि हिफ्ज़ जो था हमारा वो साफ नहीं था, याद तो था लेकिन साफ पढ़ते नहीं थे। तो वालिद साहब ने अपने एक शागिर्द को जो उन्हीं के पढ़े हुए थे, अरबी उनसे पढ़ा था, उनके सुबुत किया और कहा कि इनका हिफ्ज़ आप कुरान मजीद साफ़ कर दिए। चुनांचे 1 साल पूरा अलग करके हमने कुरान मजीद को साफ़ किया और तजवीज़ के साथ पढ़ने की मशक़ पैदा हुई। और वहीं हमने अपने चाचा से मौलाना मोहम्मद आकिल जो शायर भी थे और आलिम भी थे, वालिद साहब के साथ पढ़ा था उन्होंने, उनसे हमने फ़ारसी पढ़ी, और फ़ारसी इतनी पढ़ी कि गुलिस्तान और बलोचिस्तान पढ़ करके वालिद साहब से फ़ारसी में ख़त किताबत करते थे। ये वो ज़माने की बात है। तो वहीं गया कि फ़ारसी से शनासाई हुई। 2 साल घर पर रह करके हमने गुजारा। उसके बाद फिर वालदा की निगरानी थी, इसलिए वालिद साहब प्रतापगढ़ में रहते थे और अक्सर आते थे। तो इस तरह से उनसे भी हमारा इस्तिफ़ादा रहा। और फिर वहाँ से 1955 में हम लखनऊ आए। वालिद साहब ने हमें कुछ किताबें दी, तमीर के नाम से, कि देखो इसको पढ़ो, और कुछ नबीन भी है, उसको पढ़ करके इस काबिल बना लो कि दर्जा 2 में तुम्हारा दाखिला हो सके। बहरहाल उस ज़माने में दाखिले के लिए बड़ा इंतज़ार किया और करीब था कि 90 में दाखिला ना हो, लेकिन फिर मौलाना अबू खान खां साहब जो हमारे वालिद साहब के शागिर्द थे और उनसे ताल्लुक़ था, इस ताल्लुक़ की बिना पर उन्होंने हमारा दाखिला मुमकिन बनाया अपनी जद्दोजहद से। उस ज़माने में नायब मोहतमिम भी थे और मौलाना इमरान खान साहब उस ज़माने में मोहतमिम थे। चुनांचे वालिद साहब को ख़त मिला और वो हमको लेकर के नदवे आए। हमें याद है कि उस ज़माने में तलबा बहुत ज़्यादा नहीं थे, 200-250 तलबा थे कुछ, और उस्ताद ने हमारा इम्तिहान लिया, और इम्तिहान लेने वाले में मौलाना हबीबुर्रहमान खां थे जो सुल्तानपुर के रहने वाले और सरपना बहुत अच्छी इस्तेदाद थी फ़िक़ा भी। उनसे हमने फिर किताबें पढ़ी आगे। तो उन्होंने हमारा दाखिला लिया और फैसला किया कि तुम अव्वल अरबी में पढ़ोगे। वहीं पहली मरतबा मुलाकात हुई मौलाना अब्दुल माजिद नदवी से जो मुअल्लिम इंशा के अव्वल दोम के मुसन्निफ़ थे और गया के रहने वाले थे। वालिद साहब का बड़ा एहतमाम किया उन्होंने, और फिर उन्होंने हमारी निगरानी की। ख़ास तौर से दारुल उलूम के मरकज़ी हिस्से में एक कमरे में गोया कि हमको जगह दी गई और वहीं हम रहने लगे। तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल उनकी निगरानी में रहे, और उनकी निगरानी से बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। और फिर वो ऐसा भी करते थे कि मज़मून को दे देते थे कि इसको साफ़ करो। इस तरह से हमारा ख़त जो था साफ़ था। वालिद साहब ने बड़ी मशक़ कराई थी, तो हम अच्छा लिखते थे।
इस वजह से असातिज़ा हमसे काम लेते थे। इसका हमको बड़ा फ़ायदा हुआ कि उनके मज़ामीन को नकल करते थे और फिर उसमें कभी पूछते भी थे, तो तलफ़्फ़ुज़ भी सही मालूम होता था उनके पढ़ने की वजह से। हमारे यहाँ मुशायरे होते थे, उसमें शरीक होते थे, तो उर्दू गोया कि हमने इस तरह पढ़ी और फिर मज़ीद मुताला किया यहाँ आने के बाद। और छोटी अंजुमन जो अल-इस्लाह कहलाती थी उसमें शरीक होते थे बराबर। हमारे दोस्तों में शमशुल हक साहब नदवी हैं जो उस ज़माने से हमारे साथ थे, वो दोम में थे, हम अबुल अरबी में थे, लेकिन इस ताल्लुक़ की वजह से जो पता और उनसे कायम हुआ था वहाँ की वजह से ये ताल्लुक़ बाक़ी रहे और आज भी माशाअल्लाह वो काम कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं और बहुत बेतकल्लफ़ी से हम दोनों की ज़िंदगी गुजरती है। ताल्लुक़ात भी माशाअल्लाह बड़े अच्छे दोस्ताना मुखलिसाना हैं। और यहीं ये बात बता दें कि वालिद साहब ने वहाँ के ज़माने क़याम में हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से जो राब्ता पैदा किया, तो उसकी वजह से हम देखते थे कि वो उनके साथ देहातों में निकल जाते थे और वालिद साहब जाते वक्त शक्कर और चाय की पत्ती रखते थे, कुछ बिस्कुट और चना सत्तू ले लेते थे और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के साथ देहातों में निकल जाते थे। 8 दिन 10 दिन कहीं पैदल जा रहे हैं, कहीं सवारी पर जा रहे हैं और देहातों में जा कर के हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब वाज़ होते थे तौहीद पर और शिर्क की बुराई पर और बिदअत पर, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में शरीक होते थे और दोनों लोगों से फ़ायदा उठाते थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से बहुत से ताल्लुक़ वाले थे जो उनके साथ एक महीना रहते थे, तो ये दौरे देहात के बहुत मुफीद होते थे। और हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के बड़े कारनामे हैं और बड़े इशार कुर्बानी की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। ये देहातों में फिरते थे और कभी 10 दिन के बाद वापस आ रहे हैं, कभी 15 दिन के बाद वापस आ रहे हैं। हम छोटे थे, इस वजह से यहीं मदरसे में रहते थे और जो तलबा का खाना होता था वो हमारा भी खाना होता था, तो बहुत मुजाहिदे की ज़िंदगी थी। और वालिद साहब इसमें हमारे साथ कोई रियायत नहीं करते थे कि जो तलबा सब तलबा खाते हैं वो हम भी खाएँ, और उसका वो पैसा भी देते थे कि एक तरह से फ़ीस होती थी हमारे वालिद साहब की तरफ से। इस तरह से शुरू की ज़िंदगी में जो तालिबान ज़िंदगी होती है उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और ये जो होता है कि किसी मोहतरम का लड़का होता है तो उसके साथ रियायत की जाती है, हमारे साथ कत्ल नहीं होता था। हम अगर सबक नहीं याद किया तो हमको सज़ा मिलती थी और ये लाजमी था कि हम रोज़ाना का सबक सुनाएं, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और बाद की ज़िंदगी में जो गुज़री हमारी, तो उसमें इस इब्तदाई ज़िंदगी का बड़ा दखल है। इस तरह से गोया कि हमारी ज़िंदगी परतावड़ में गुज़री और वहाँ के लोगों से ताल्लुक़ रहा और बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन वालिद साहब हमेशा इनकी निगाह होती थी कि बुरी सोहबत में न रहें, बुरे लड़कों के साथ न रहें और इधर उधर न जाएँ, मदरसे ही में रहें। तो ज़्यादातर ज़िंदगी हमारी मस्जिद ही में होती थी, मस्जिद और मदरसा लगा हुआ था, इस वजह से ये ज़िंदगी गुजरी वहाँ। और वो कस्बाती ज़िंदगी थी और बहुत सादगी की ज़िंदगी थी उस ज़माने में। और ये भी हमने देखा कि जो उसमें के बाद ज़मींदार हजरात थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, उनका ताल्लुक़ जो है वो उस ख़ानदान से था जो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब का ख़ानदान था। और या हज़रत मौलाना मोहम्मद अवैस साहब नदवी नगरामी का एक ससुराल वहीं थी, तो उनके बहुत से जो रिश्तेदार थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और कभी कभी वो और उनके बच्चे आ जाते थे। तो ये ज़मींदारों का जो घराना था वो तालीम याफ्ता घराना था, इसलिए अंग्रेज़ी लिबास हमने उनके बच्चों को पहनते देखा। तो वालिद साहब से एक मतलब हमने कहा कि अब्बा ये अंग्रेज़ी लिबास पहने हुए हैं, अंग्रेज़ी जूता है, तो हम भी पहनना चाहते हैं। तो वालिद साहब ने बड़ी हिकमत के साथ, नरमी के साथ कहा, बेटे अंग्रेज़ बड़े ज़ालिम हैं और उन्होंने बड़े जुल्म ज़्यादती किया है, तुम उनका लिबास पहनोगे और ख़बरदार देखो उसमें ये बुराई है, ये बुराई है। बहुत हिकमत के साथ, नरमी के साथ समझाया उन्होंने। तो ऐसी नफ़रत पैदा हो गई कि आज तक जो है वो इस तरह का जूता जो अंग्रेज़ी जूता कहलाता था उस ज़माने में वो कभी हमने ख़रीदा भी नहीं, जबकि हम आज़ाद हो गए थे और कोई पाबंदी नहीं थी। तो वालिद साहब की तालीम तरबियत हकीमाना अंदाज की होती थी और कभी उन्होंने हमको डांटा डपटा नहीं, बस नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, और बस इसकी रियायत करते थे कि चूँकि हमारी वालिदा वहाँ नहीं थी और यहाँ वतन में थी, इस वजह से इसकी रियायत करते थे कि हर बाज़ार को वहाँ बाज़ार लगता था जुमा और सोमवार को। तो उस ज़माने में कभी 2 पैसे कभी 2 आने देते थे, तो बाज़ार से ख़रीद करके कुछ खा लेते थे, कोई फल वगैरह। इससे गोया कि ये हमारी हमारा इनाम होता था। वालिद साहब इसी तरह से हमको ले जाते थे, कभी कभी दौरों में ले जाते थे, 2-3 दिन का दौरा होता था।
تو اس طرح سے وہاں کی زندگی سے بڑا فائدہ ہوا، اور معلوم ہوا کہ والد صاحب کہ اس مدرسے میں بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے۔ حفظ کی وجہ سے وہاں کے علاقوں میں عام طور پر والد صاحب کا بڑا احترام، اور ان کو بلاتے تھے بعد میں، اس طرح سے ان سے بھی فائدہ اٹھایا لوگوں نے، اور آج تک اس کے اثرات دیکھے ہم نے۔ بمبئی، بھوساول، مالیگاؤں، بھیونڈی جب دورے پر جانا ہوتا تھا کبھی تو دیکھتے تھے والد صاحب کو چرچا بھی لوگوں نے کیا، اور کہا کہ بہت اشار اور قربانی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور ان کی وجہ سے گویا کہ ہمارا تعلق دین سے ہوا۔ اس وجہ سے یہ جو یادداشتیں ہیں ہماری وہ ململ سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے لگے، اور والد صاحب اس زمانے میں 10 روپے ہمیں بھیجتے تھے منی آرڈر سے ناشتے کے لیے ہر مہینے۔ اس سے گویا کہ اپنے ناشتے کا سامان لاتے تھے، اور کبھی چنا لے لیا، کبھی رات کی روٹی رہ گئی، اور کھا کر کے وہ پڑھنے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر کھانا ہی ہوتا تھا، جو اس زمانے میں جو نوجوان ہوتے تھے ظاہر ہے کہ اسی سے کام چلانا پڑتا تھا۔ بہرحال یہ زندگی گزرتی رہی، اور پھر درجہ سوم میں جب ہم پہنچے تو ہماری شادی کر دی گئی۔ اچانک معلوم ہے کہ رشتہ لگ گیا ہے، اور ایک اچھا رشتہ ہے، اور تو ہم نے اس کی بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہے کہ نہیں، والد صاحب کی خواہش ہے، والدہ کی بھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ شادی ہو گئی، اور لوگوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ شادی کے بعد آدمی پڑھتا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نبھانا تھا ہمیں، تو پڑھتے بھی رہے، تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، اور گھر جاتے رہے۔ اور اس زمانے میں اہلیہ سے جو تعلق تھا تو انہوں نے بڑی تقشف کی زندگی گزاری، اور ان کو یہ تھا خیال کہ ابھی تو درجہ سوم میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر عالمیت کریں گے، 4-5 سال اس میں لگیں گے، پھر فاضل کریں گے، اور کب کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ نے صبر دیا، اور انہوں نے برداشت کیا۔ اس طرح سے ماشاءاللہ زندگی گزرتی رہی۔ والد صاحب اسی قلیل آمدنی میں ہم سب کا لحاظ کرتے تھے، اور ہم جب رمضان کا زمانہ آتا تھا تو گھر چلے جاتے تھے، اور مہینہ بھر رہ کر کے وہاں تراویح بھی سناتے تھے،